سردیوں کی یخبستہ رات میں ٹھنڈ اپنے عروج پر تھی۔ میں ٹرین سے اترا اور کوئی سواری ڈھونڈنے لگا جو مجھے گاؤں لے جاتے، مگر وہاں موجود کوئی بھی سواری تڑیانہ گاؤں جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایسا کیوں ہے۔ ابھی 3 سال پہلے تو جب میں گاؤں سے شہر آیا تھا تب تو وہاں پر ہر سواری جاتی تھی، رات بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، پھر اب کیوں کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اگر میں اسٹیشن پر رکتا تو صبح تک انتظار کرنا پڑتا، اور اگر میں پیدل چل دیتا تو شاید 1-1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی چادر کی بکل اچھی طرح ماری اور گاؤں کی طرف چل پڑا۔ اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے میرے منہ پر پڑنے لگے، مگر میں بھی ڈھیٹ بن کر چلتا رہا۔ ایک تو سردی بہت زیادہ تھی، اوپر سے پہلے سفر کی تھکاوٹ اور بعد میں پیدل چلنے کی کوفت۔ میرے جسم کا ایک ایک بال دکھ رہا تھا۔ میری جب بس ہو گئی تو میں نے کراہ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ شاید کوئی ایک ایسی جگہ مل جائے جہاں پر رات کے لیے رک سکوں، مگر دور دور تک صرف کھیت تھے جن پر اوس پڑی ہوئی تھی۔ کوئی گھر دکان نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ایک مرتبہ پھر سے چل پڑا۔ بہت ہمت کرتے ہوئے گاؤں میں پہنچا تو پورا گاؤں سنسان تھا۔ میرا گھر گاؤں کے بالکل آخر میں تھا، یعنی ابھی مجھے وہاں پہنچنے میں تھوڑا وقت لگنا تھا۔ میں نے دیکھا تھوڑا قریب سے مجھے ہلکی پیلی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے نئی جان میرے پورے جسم میں بھر گئی اور میں تیز قدم اٹھاتا ہوا اس طرف چلا گیا۔ وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہوں، وہ ایک چائے والا ڈھابا ہے، چھوٹا سا بالکل ٹین کا بنا ہوا۔ اس میں ایک نوجوان پٹھان لڑکا منکی کیپ پہنے ٹھٹر کر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی جلدی سے بولا، ہاں بابو کیا چاہیے، چائے پیو گے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ادھر ایک پھٹے پر بیٹھ گیا۔ میرا جواب سن کر وہ جلدی جلدی سے چائے کے برتن میں دودھ اور باقی سامان ڈال کر چولہا جلا چکا تھا۔ وہاں سے فارغ ہوا تو بولا، لگتا ہے دور سے آ رہے ہو۔ میں نے کہا، ہاں شہر سے آ رہا ہوں، اسی گاؤں میں رہتا ہوں، مگر پھر کام کے سلسلے میں باہر جانا پڑا تو سوچا اب ایک چکر گاؤں کا بھی لگا لوں۔ یہ بتاتے ساتھ ہی میں نے پوچھا، تم بھی لگتا ہے نئے آئے ہو؟ میں اسٹیشن سے پیدل آیا ہوں، مگر مجال ہے کوئی بندہ یا بندے کی ذات دکھائی دی ہو۔ پھر تم کیوں یہاں پر ڈھابا کھول کر بیٹھے ہو؟ آتا کون ہوگا رات کے وقت؟ وہ بے طرح سے مسکرا کر بولا، بس بابو اللہ سائیں ہے نا، آپ کی طرح کسی نہ کسی کو بھیج ہی دیتا ہے، اسی کی آس پر تو روزی روٹی کمانے نکلتے ہیں، اب وہی نہیں دے گا تو کون دے گا؟ مجھے اس لڑکے کی بات بڑی اچھی لگی، ایک تو وہ محنت کر رہا تھا، اوپر سے اس کا یقین۔ چائے بن گئی تھی۔ جو ہی میں نے چائے کا کپ اٹھایا تو سکون میری رگوں پہ میں اتر گیا۔ میں چائے پی کر اسے پیسے ادا کر کے اپنے گھر کی طرف چلا آیا، مگر وہاں جا کر کون سا کوئی میرا انتظار کر رہا تھا۔ گھر بالکل خالی پڑا تھا۔ میں نے ہمسایوں سے پوچھا کہ اماں اور باجی کدھر ہیں؟ وہ مجھے حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولے، تمہاری بہن کی شادی ہو گئی تھی اور ایک رات ماں بھی مر گئی، تمہیں نہیں پتا کیا؟ میری ماں مر گئی اور 3 سال سے میں اس بات سے انجان ہوں۔ یہ بات مجھے وہاں جب پتہ چلی تو ایسا لگا ہوا کا ایک سرد جھونکا آیا تو میں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہ سکوں گا۔ یعنی اتنی بیگانگی! میں نے اپنی ماں کا پتہ کیوں نہیں لیا؟ ایسی بھی کیا دھن سوار تھی شہر میں رہنے کی؟ ہمسایہ میری کیفیت سمجھ رہا تھا، اس نے اپنے گھر کی بیٹھک میں میرا بستر لگا دیا، مگر میں وہاں سے چلا آیا۔ واپس گھر میں آیا تو کچا گھر جس میں 3 سالوں کی آندھی اور طوفان کے باقیات بڑے آرام سے دیکھے جا سکتے تھے۔ میں وہیں بیری کے درخت تلے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب کی بار ٹھنڈ کا احساس میرے وجود سے ختم ہو چکا تھا۔ صرف اتنا یاد تھا کہ میری ماں مجھے یاد کرتے ہوئے مر گئی ہو اور میں کتنا بے حس بنا رہا۔ تقریباً صبح تک میں وہیں بیٹھا رہا۔ صبح ہوئی تو تب تک مجھے بخار بھی چڑھ گیا تھا۔ گاؤں میں صبح بہت جلدی ہو جاتے تھے۔ وہ ہمسایہ میرے لیے ناشتہ لایا، مگر آگے میں بخار سے تپ رہا تھا۔ اس نے میرے گھر کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر لٹا کر پہلے تو حکیم صاحب کو بلایا، پھر مجھے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروا کر چلا گیا۔ میں نیم کھلی آنکھوں سے کمرے کی حالت دیکھنے لگا۔ اس میں لگے بڑے بڑے جالے واقعی اماں کی غیر موجودگی کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ پوری رات میں کسی پتھر کی طرح بیٹھا رہا۔ اب میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو گرنے لگے، جنہیں میں نے صاف کرنے کی زحمت تک نہیں کی۔ شوق، صرف ایک شوق اور پیسے کی خاطر میں نے یہ گھر اپنی ماں اور بہن کو چھوڑ کر گیا تھا۔ باجی کی شادی پتہ نہیں ماں نے کیسے کی ہوگی۔ پچھتاوے مجھے دبوچ رہے تھے۔ حکیم مجھے نیند کی دوائی دے کر گیا تھا تو میں جلد ہی سو گیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر سوتا رہا۔
जब उस हमसाये ने आकर जगाया और खाना खिलाकर दवाई देकर फिर वहाँ से चला गया। मुझे खुद पर तरस आ रहा था। मैं 2-3 दिन बाद जाकर कहीं बेहतर हालत में आया तो घर से बाहर निकलने का सोचा, मगर जैसे ही घर से बाहर कदम रखने लगता तो मुझे कुछ चौके लगते। पहले भी ऐसे ही घर वालों को छोड़कर गया तो पीछे कोई नहीं रहा। मैं वापस मुड़ आया। 3-4 दिन तो हमसाये ने मेरी खूब देखभाल की, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और अपने काम काज खुद देखने लगा। उन दिनों गांव में अजीब सी फिजा फैली हुई थी। मैं रात को गांव से बाहर निकला तो देखा पूरा गांव सुनसान पड़ा है। ऐसा तब तो नहीं होता था जब मैं यहाँ से गया था। 10-11 बजे तक लोग तो बाहर ही फिरते रहते। ज्यादातर तो बूढ़े आदमी किसी चौपाल पर मूढ़े रखकर घंटों बातें किया करते। मगर अब वक्त वो नहीं रहा था। जमाना एक तरह से मॉडर्न हो गया था, तो अब लोगों ने मगरिब के बाद घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। मुझे बड़ी हैरत होती थी। मैं एक दिन उकता गया अकेला रहकर, तो सोचा कि क्यों ना नमाज पढ़ने चला। दिन की सारी नमाजें मस्जिद में पढ़ी। जब इशा पढ़ने गया तो क्या देखता हूँ कि मस्जिद का दरवाजा बंद है, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही अजान हुई थी। फिर दरवाजा क्यों बंद किया होगा? मैं काफी देर वहाँ खड़ा इंतजार करता रहा कि अभी कोई आएगा और दरवाजा खोल देगा, मगर 1 घंटे के इंतजार के बावजूद वहाँ पर कोई नहीं आया। मैं हैरत से वापस लौट गया। दिन में मस्जिद में बहुत सारे लोग नमाज पढ़ने आते, पर अब इशा के वक्त एक भी नमाजी वहाँ पर नहीं आया था। मैं वापस मुड़ा, लेकिन घर जाने का भी दिल नहीं कर रहा था। मुझे अचानक से वो होटल वाला पठान लड़का याद आया, तो चाय पीने की खातिर मैं वहाँ उसके ढाबे की तरफ चला। वहाँ गया तो वो उसी दिन की तरह चादर की बिकल मारे बैठा चाय बना रहा। इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। मुझे देखकर उसने जल्दी से हाथ हिलाया, क्योंकि वो मुझे पहचान चुका था। इसीलिए सलाम दुआ करने के बाद वहीं पर बैठ गया और चाय पीने लगा। चाय पीते पीते वो लड़का हैरत से बोला, बाबूजी कहीं से आग सींच के आ रहे हो क्या? मैंने हैरत से कहा, नहीं तो घर से निकला था तो मस्जिद की तरफ, फिर वहाँ से सीधा तुम्हारे पास आ गया। यकीन करो सुबह की यही आग देखी है जो तुम्हारे चूल्हे में जल रही है। वो चुप कर गया, मगर मुझे तजस्सुस होने लगा कि वो पूछ रहा। मैंने उसे चुप देखा तो पूछा कि तुम क्यों पूछ रहे हो, खैरियत थी? उसने एक बार फिर बोलने के लिए मुंह खोला, मगर फिर चुप करके नफी में सर हिला दिया और कोई नई बात शुरू कर। मैंने उसकी बात का जवाब दिया, मगर ये बात मेरे दिमाग में अटकी। मैंने एक मर्तबा फिर पूछ लिया कि बताओ क्यों पूछ रहे थे आग का? वो सोचता हुआ बोला, धुएं की महक उठ रही थी आपसे, मुझे लगा कहीं बैठकर आग सेंकते होंगे। मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, नहीं तो, ऐसा तो नहीं है। वो जल्दी से बोला, मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। आप सुनाओ, शहर में क्या काम करते थे? मैं उसे बताने लगा कि मैं वहाँ पर अदाकारी करता था। स्टेज शो में रोज कोई ना कोई रोल करता था, यही मेरा बहुत बड़ा शौक था। वो पुरजोश होकर मेरी बात सुनता हुआ अचानक से बोला, अरे वो देखा आपने वहाँ? मैं अपनी बात में मगन था और मेरा रुख भी पठान लड़के की तरफ था, तो मुझे जो कुछ दिखाई दे रहा था मैं वो नहीं देख सकता। वापस मुड़कर सड़क की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने पूछा, क्या था उधर जो मुझे दिखा रहे थे? वो झिझक कर बोला, मुझे लगता है कुछ भी नहीं था, मेरा वहम होगा। फिर भी क्या था? मैंने इसरार किया, मगर वो बात टाल गया और मैंने फिर उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। मगर अभी 2 लम्हे ही गुजरे, वो चौंक कर सड़क की तरफ मुतवज्जे हुआ और बोला, वो फिर गुजरी है यहाँ से। इतना बोलकर वो अपने ढाबे से बाहर आ गया और गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने लगा। उसकी देखा देखी मैं भी पीछे आ गया, मगर दूर दूर तक सिवाय अंधेरी सड़क के मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो बौखला कर पलटा, फिर मुझे देखकर खजालत से हंसते हुए बोला, मुझे लगा था जैसे यहाँ पर कोई छोटी बच्ची थी। छोटी बच्ची? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा तो वो सोच सोच कर बोलने लगा, हाँ छोटी सी बच्ची। उसने सफेद रंग की फ्राक पहन रखी थी। यहाँ से पहले इधर भागी थी, फिर दूसरी तरफ। मैंने पूछा, तुम्हें यकीन है तुमने यहाँ पर किसी छोटी बच्ची को ही देखा था? वो हाँ बोलता बोलता चुप हो गया, फिर सर खुजाता हुआ बोला, मुझे लगता है मेरा वहम होगा, वरना इतनी रात को इंसान बाहर नहीं निकलते, किसी बच्ची ने क्यों निकलना है? वैसे भी अगर होती तो दिखाई दे जाती। अब भला काफी देर हो गई है हमें यहाँ पर खड़े हुए, मगर अब वो एक मर्तबा भी नजर नहीं आए। चले हम अंदर चलते हैं, सुबह से ही चक्कर आ रहे थे मुझे, उन्हीं की वजह से कुछ हुआ होगा। हम दोनों वापस अंदर आ गए, मगर मैंने गौर किया वो पठान लड़का कुछ उलझा उलझा दिखाई दे रहा था। बेशक उसने मुझे मुतमईन कर लिया था, मगर वो खुद मुतमईन नहीं दिखाई दे रहा था। मैं उससे बातें करने लगा, शहर में मैंने क्या क्या किरदार निभाए सब बताने लगा, तो जल्दी से उसका ध्यान उस छोटी बच्ची से भटक कर मुकम्मल तौर पर मेरी जानिब मबसूल हो गया। मैंने फिर भी सुकून की सांस ली।
اس کے بعد ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تقریباً 12 بج گئے تھے مجھے وہاں پر بیٹھے بیٹھے، مگر اٹھنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ بہت دن بعد کوئی مخلص سا لڑکا ملا تھا جس کے ساتھ دوستی کر کے میں کسی گھاٹے میں نہیں رہنے والا تھا۔ میں نے جانے کی اجازت مانگی تو میرے کہنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، بابو جی کل بھی ضرور آنا، مجھے یہاں آنا آپ کا بڑا اچھا لگا ہے۔ وقت کٹ گیا میرا تو۔ اس نے مصافحہ کیا اور وہاں سے میں چلا آیا۔ خاموش راستے سے چلتے ہوئے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اکیلا نہیں۔ 2-3 مرتبہ مڑ کر پیچھے دیکھا، مگر دور دور تک بندے تو کیا ایک بندے کا بھی نام و نشان نہیں تھا، مگر اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ میں تھک گیا تھا، اس بات کو پس پش ڈال کر گھر آ گیا، مگر جیسے ہی گھر میں موجود بیری کے درخت کے نیچے سے گزرا تو مجھے بہت زیادہ جلنے کی بو آئی۔ میں نے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بیری کو دیکھا تو اس کے نیچے سے دھوئیں کے مرغولے اٹھتے ہوئے فضا میں گم ہو رہے تھے۔ میں چونک گیا، جب قریب جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی دھواں نہیں تھا اور اب تو جلنے کی بو بھی مکمل طور پر ختم ہو۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں چند لمحے وہاں کھڑا رہا، پھر چپ کر کے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں گیا تو اچانک سے مجھے اماں کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ بھی اکثر ہی رات کو باہر سوئے، گرمی ہو یا سردی، ہم جتنا بھی کہتے اندر آ جائیں مگر وہ بات نہیں سنی اور کبھی بھی ہمیں اپنے ساتھ نہیں سلایا تھا، ہمیشہ خود سے دور ہی رکھتے۔ ایک مرتبہ میں رات کو واش روم جانے کے لیے کمرے سے باہر نکلا تو پیروں میں جوتا نہیں تھا۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ اماں اسی بیری کے درخت کے نیچے بیٹھی کچھ کر رہی۔ میں نے دور سے ہی پوچھا، کیا ہوا اماں، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اتنی پوچھنے کی دیر تھی کہ اماں ایک جھٹکے سے پیچھے مڑ اور مجھے دیکھ کر گھبرا گئی، جیسے ان کی کوئی چوری میں نے پکڑ لی ہو۔ میں آگے آنے لگا تو چلا کر بولی، جوتا پہن کر آؤ، ایسے ننگے پیر مت چلے آنا۔ میں واپس جوتا پہن کر کمرے سے آیا تو کیا دیکھتا ہوں، اب بیری کے نیچے اماں بیٹھی نہیں تھی بلکہ کھڑی ہوئی تھی۔ میں قریب چلا آیا، کنکھیوں سے نیچے زمین پر دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کی مٹی کھودی ہوئی تھی، مگر اسے جلدی سے دوبارہ صحیح کر دیا ہو۔ میں نے پوچھا، یہاں کیا کر رہی تھیں آپ؟ وہ مسکرا کر بولی، کچھ نہیں، یہاں سے گزر رہی تھی، مجھے واش روم جانا تھا تو جوتا ٹوٹ گیا، بس اب بیٹھی وہی ٹھیک کر رہے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹوٹی ہوئی چپل میرے سامنے کر دی تو میں بھی پرسکون ہو گیا اور مزید تفتیش نہیں کی۔ آج مجھے بیری تلے سے وہ دھواں اور عجیب سی بو آئی تو پتہ نہیں کیوں اچانک سے اماں کی یہ بات یاد آ گئی۔ کیا مجھے مٹی کھود کر دیکھنا چاہیے تھا اس وقت وہ کیا کر رہی تھیں؟ ایک عجیب سی سوچ میرے ذہن میں آئی، مگر میں اسے رد کر کے سو گیا کیونکہ یہ بات بہت سال پرانی تھی۔ اگلی صبح میں اٹھا تو وہی ہمسایہ میرے گھر آیا۔ اس نے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھام رکھی تھی، مجھے ناشتہ دے کر ویسے ہی کھڑا تھا تو بولا، یار اکرم، یہ بیری میں نے سنا ہے اچھی نہیں ہوتی، ویسے بھی یہ گھر اکیلا ہے یا کوئی نہیں رہتا تو اسے تو کٹوا دے۔ میں نے بیری کو دیکھا جس پر چھال لٹک رہی تھی اور اسے خوفناک سا روپ دے رہی تھی۔ اماں نے لگائی تھی میرے پیدا ہونے سے پہلے، ان کی نشانی ہے، نہیں کاٹ سکتا۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا، اتنا خیال ہوتا اپنی اماں کا تو چھوڑ کر نہ جاتا اسے۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میرے گھر کے باہر ایک بوڑھی عورت گزرتے ہوئے رکی، ہمارے گھر کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں تو باہر والا بڑے آرام سے گھر کے اندر نہ صرف جھانک سکتا تھا بلکہ بات چیت بھی کر سکتا تھا۔ مظفر صحیح کہہ رہا ہے، کٹوا دے اسے، مجھے تو خدشہ ہے کہ گاؤں میں پڑنے والی مصیبت اسی بیری کی وجہ سے نہ ہو۔ ہم دونوں جو اپنی باتوں میں مگن تھے چونک گئے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، خالہ کیا بات کر رہی ہو، کون سی مصیبت؟ تو وہ حیرانی سے بولے، تجھے جیسے پتہ نہیں، 4 دن ہو گئے ہیں پنڈ میں آئے ہوئے، ابھی تک چھنا کاکا بنا ہوا ہے۔ میں تو کہتی ہوں اس گاؤں میں جتنی بیریاں ہیں ساری کٹوا دیں، کہیں نہ کہیں پر سے تو مصیبت سے جان چھوٹے گی۔ وہ عورت خود ہی سوال جواب کر رہی تھی جس کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے مظفر کو دیکھا تو وہ بھی پرسکون تھا، گویا اس عورت کی ساری بات سن اور سمجھ رہا ہوں۔ بات تو تیری ٹھیک ہے خالہ، مجھے تو بڑا خوف آتا ہے اس بیری سے، تبھی تو اکرم کو بول رہا تھا کٹوا دے اسے، کہیں فساد کی جڑ یہی نہ ہو۔ وہ عورت بھی اب مظفر کو کوئی جواب دینے میں مگن تھی۔ میں بڑا حیران ہو کر اس کی آدھی ادھوری باتیں سن رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیا بول رہے تھے جو میرے پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یار کیا بات ہے، تم دونوں آپس میں ہی لگے ہوئے ہو، مجھے بھی تو بتاؤ کیا مصیبت پڑی ہے گاؤں میں۔ اتنا پوچھنے کی دیر تھی کہ مظفر بولا، بتاتا ہوں یار، مگر اس سے پہلے ہی وہ عورت دیکھ کر مجھے بولی، دیکھ کاکا، مجھے یہاں سے جانے دے، پھر بتائیں، ایسی خواہ مخواہ کی بلا میرے گلے نہ پڑ جائے۔ میرا تو مشورہ ہے بس بیری کٹواؤ اور چپ کر جاؤ،
बाकी बातों की वजाहत में ना पड़ो। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। मैंने हैरत से मुजफ्फर को देखा तो वो इशारे से बोला, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा क्या हुआ? वो मुझे पुरसकून होता हुआ बोला, बताऊंगा, फिर बताऊंगा, अभी नहीं, कल कहीं चलते हैं गांव से बाहर, फिर बताऊंगा। अब मेरी कलबलाहट मजीद बढ़ गई थी कि ऐसी कौन सी बात है जो मुझे मुजफ्फर यहाँ पर नहीं बता सकता। और वो औरत भी इसी खौफ से यहाँ से चली गई कि इसके सामने ये बात ना हो। मैंने दोबारा मुजफ्फर को पूछा मगर वो काम का बहाना करते हुए वहां से चला गया। दफातर मुजफ्फर के जाते ही मुझे रात वाला वाकया याद आ गया जब मैं मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ने गया और आगे से मस्जिद बंद थी। मैं घर के अंदर आ गया, तभी मेरी निगाह बेरी पर पड़ी तो मेरे दिल में होक उठी। पता नहीं अम्मा ने कितनी मोहब्बत से ये बेरी लगाई होगी, मगर आज अम्मा यहाँ पर मौजूद नहीं थी और वो बेरी वहीं की वहीं मौजूद थी, बल्कि बहुत बड़ी भी हो चुकी थी। और ये मुजफ्फर मुझे बेरी काटने का मशवरा दे रहा था। मैं कमरे में आकर थोड़ी देर चारपाई पर लेटा तो मुझे बाजी की याद आई। बेशक अम्मा नहीं थी, लेकिन बाजी को तो मिल सकता था, उसकी तो शादी हो गई थी। मैं फटाफट उठ बैठा, लेकिन बाजी की शादी कहाँ हुई थी? मुझे तो इस बात की भी खबर नहीं थी। हाँ, अम्मा ने मुझे शहर में 2-4 खतूत लिखे थे जिनमें बाजी के लिए आने वाले रिश्तों का जिक्र हुआ था, मगर मैं ये नहीं जानता था कि उनमें से किस घराने में बाजी की शादी हुई है। वैसे भी वो खत शहर में ही पड़े थे, उन्हें मैं अपने साथ लेकर नहीं घूम सकता था, तो वहीं रखाया। मुझे एक मरतबा फिर से मुजफ्फर का ख्याल आया, वो तो ज़रूर जानता होगा कि बाजी की शादी कहाँ हुई। मैं एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर उसके घर चलाया, मगर वायरी किस्मत, वो घर में मौजूद नहीं था। उसकी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। मैं वापस मुड़ने लगा तो मुझे प्यार देकर हाल अहवाल पूछा। वो भी मुझसे बात करने के लिए खड़ी थी। उन्होंने पूछा, मुजफ्फर से कोई काम था क्या या खाना चाहिए? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, खाला, मुझे ये पूछने में शर्मिंदगी तो हो रही है, मगर क्या करूं? तब हालात ही ऐसे थे, मैं वापस नहीं आ सका। वो हैरानी से बोली, क्या हुआ बेटा, खैरियत है? मैंने इस बात में नफ़ी में सर हिलाकर कहा, जी, क्या आप जानती हैं बाजी की शादी कहाँ हुई थी? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो चंद लम्हे मुझे शाकी निगाहों से देखती, फिर बोली, अंदर आ जाओ, ये बातें यहाँ खड़े होकर करने वाली नहीं है। मैं इजाज़त पाते ही उनके घर में दाखिल हो गया। मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए वो बोली, बेटा, क्या तुम्हें वाकई नहीं पता कि तुम्हारी अम्मी की वफात का और बहन की शादी का? मैं सोच में पड़ गया कि ये क्या कहना चाह रही हैं। मुझे देखकर वो फिर बोली, बताओ, क्या तुम्हें बिल्कुल नहीं पता? तुम लाइल्म हो इस मामले से? मैंने सर हिलाया और कहा, जी खाला, जब मैं यहाँ आया तो मुझे मुजफ्फर ने ही बताया था कि अम्मी की वफात हो गई और बाजी की शादी हो गई। वो चंद लम्हे चुप रही। मुझे उनकी चुप से वहशत हो रही थी। फिर धीरे से बोली, क्या तुम जानते हो तुम्हारी माँ की वफात कैसे हुई? मैंने नफ़ी में सर हिला। अंदर ही अंदर मुझे उलझन भी हो रही कि ये असल बात क्यों नहीं कर रही, क्या पूछना चाह रही है। उन्होंने बोलना शुरू किया कि जिस दिन तुम्हारी माँ की वफात हुई उस दिन तुम्हारी बहन की शादी हुई और कोई ये बात नहीं जानता, मगर मैं जानती हूँ कि जब मैं तुम्हारी माँ को नहला रही थी तो उसके जिस्म पर काले निशान मौजूद थे। पहले तो मैं डर गई, मगर ये बात मैंने किसी जगह नहीं बताई, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर लोगों को इस बात का इल्म हो गया तो सब लोग शायद उन्हें गुनहगार समझेंगे। हो सकता है कि उसका जनाजा भी ना पढ़ाया जाए। तभी मैंने ये बात छुपा ली। और हाँ, तुम्हारी माँ की गर्दन पर एक हाथ का निशान भी पड़ा हुआ था, गोया किसी ने उसका गला दबाकर मारा हो। तुम्हारी माँ के जनाजे के बाद वहीं एक औरत ने अपने बेटे के लिए तुम्हारी बाजी को पसंद कर लिया। अब वो अकेली तो नहीं रह सकती थी। उधर तुम्हारी माँ का जनाजा पढ़ाया गया और दूसरी जानिब तुम्हारी बहन का निकाह हो गया। अब वो जहाँ भी है अपनी किस्मत का खा रही है। हम नहीं जानते कि वो कहाँ रहती। ये क्या कह रही है? मैं हक्का बक्का खाला की बातें सुन रहा था। मुजफ्फर ने तो मुझे नहीं बताया था। उसने तो सिर्फ इतना बताया था कि अम्मा की वफात हो गई और बहन की शादी हो गई। मैंने खाला कोसर को कहा, क्या आप जानती हैं कि वो निशानात अम्मा के जिस्म पर क्यों? वो चंद लम्हे मुझे देखती रहीं, फिर धीरे से नफ़ी में सर हिलाकर, मैं कुछ यकीन से नहीं कह सकती। वैसे भी वो इस दुनिया में नहीं रही तो हमें इससे मुताल्लिक इन बातों को खंगालना नहीं चाहिए। मैंने पूछा, खाला, ये गांव के क्या मामलात चल रहे, क्या आपको इसके मुताल्लिक इल्म है? वो चौंक गई और बोली, क्या हुआ? कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? खैरियत है? मैंने कहा, भी मुजफ्फर थोड़ी देर पहले मुझे बेरी काटने को बोल रहा था। करीब ही एक औरत घुस कर कह रही थी कि वो भी यही बोल रहे थे। मैंने वजह पूछी तो दोनों ने बताने से इनकार कर दिया। क्या आपको कुछ इल्म है? वो ठंडी हंकार भरकर बोली, बेटा, हुआ तो बहुत कुछ है, मगर ये मामलात ऐसे हैं कि गांव में कोई इनसे मुताल्लिक बात नहीं करता।
जब कभी गांव से बाहर जाओ तो मुजफ्फर को पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगा। मैं अब भी बहुत हैरान था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो गांव में नहीं होती। मैं वहां से उठाया, घर से निकला तो मुझे मुजफ्फर दिखाई दे गया। मैंने उसका बाजू दबोचा और अपने साथ लेकर चलने लगा। वो बार बार वजह पूछ रहा था, क्या हुआ, मगर मैं भी चुपचाप उसे लिए अपने साथ चलता रहा। जब तकरीबन हम गांव से बाहर निकल आए तो मैंने कहा, आप बताओ गांव में क्या मामला चल रहा है? कोई भी मुझे इस मुताल्लिक गांव में बात करने को तैयार ही नहीं। तुम मुझे अभी और इसी वक्त बताओ कि ये सब क्या है। वो मुझे घूरता रहा, फिर अपने साथ लिए करीबी पत्थरों की तरफ बढ़ गया। वहां जाकर हम दोनों बैठ गए तो उसने बोलना शुरू किया कि जिस दिन तुम्हारी माँ का जनाजा पड़ने के बाद हम उसे दफन करके आ रहे थे, उस वक्त से ये सब कुछ शुरू हुआ है। शायद पहले भी हो सकता था, लेकिन लोगों ने ऐसा अमली मुजाहिरा तब देखा था। अम्मा का जिक्र सुनकर मेरे कान फिर से खड़े हो गए। मैंने पूछा, जल्दी बताओ क्या हुआ था? मुजफ्फर बोलने लगा कि हम खाली चारपाई लेकर वापस आ रहे थे जब एक शख्स गलती से खाली चारपाई के नीचे आ गया। जो ही वो खाली चारपाई के नीचे आया वहीं सड़क पर गिरकर तड़पने लगा। हम सब बहुत परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। इससे पहले कि हम उसका कोई इलाज करते या उसको कोई दवाई देते, वो मर गया। लोगों ने ये बात करना शुरू कर दी कि माई अच्छी औरत नहीं थी, शायद उसी की वजह से ये बेचारा बेमौत मारा गया। मगर हम जानते थे कि खाला एक अच्छी औरत थी, कभी उन्होंने कोई बुरा कहा था ना भला कहा था। मगर लोगों ने तुम्हारी माँ को जितना बुरा बनाया जा सकता था उतना बुरा बना दिया। ये मामला यहीं पर रुका नहीं। उसके बाद गांव में तरह तरह के वाकयात होने लगे। कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ होता। एक रात लोगों ने गांव के चौराहे पर कुछ लड़कियों को खड़े देखा। जब उनसे पूछा कि वो कौन है और कहाँ जाना चाहती हैं, तो उन्होंने मदद की दरखास्त की और अपने साथ लेकर चल पड़ी। उन लोगों में से कोई एक शख्स पीछे रह गया था, या जो भी मामला हुआ वो उनमें शामिल नहीं था। शाम को उन 4-5 लोगों की गुमशुदगी को महसूस किया तो पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि वो तो चंद लड़कियों की मदद करने गए थे जो मुसाफिर थी। गांव के चंद लोगों ने उनका पता किया तो क्या देखते कि गांव के चौराहे से थोड़ा आगे वो सब लोग मुर्दा हालत में पड़े थे। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, वो सब लोग मुर्दा हालत में पड़े हुए थे। उसके बाद गांव में दहशत फैल गई थी। मुसाफिरों के लिए गांव का रास्ता बंद कर दिया गया। कोई अजनबी शख्स ना हमें अगर दिखाई दे जाता तो उसे गांव से निकाल दिया जाता। काफी देर ये मामलात चलते रहे। फिर एक दिन गांव में फिर किसी न किसी की मौत होने लगी। जब थोड़ा दिमाग लड़ाया तो पता चला जितने भी लोगों की मौत हुई है मगरिब के बाद हुई है। जो लोग मगरिब के बाद घर से बाहर मौजूद होते थे वही मुर्दा हालत में पाए जाते और उनकी हालत इतनी खराब होती कि बगैर गुस्ल के ही दफन कर दिए जाते। मुजफ्फर अभी बात बता रहा था जब मैंने उसकी बात को टोक कर बोला, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें अम्मा का क्या कसूर है? अम्मा को क्यों बीच में शामिल किया जाता है? वो पुरसोच निगाहों से मुझे देखता हुआ बोला, क्योंकि इन सब में एक शे यकता थी। क्या? मैंने बेताबी से पूछा। वो धीरे से बोला, क्योंकि हर मरने वाले के मुंह से झाग निकल रही होती थी। पहली मौत जिसके मुंह से झाग निकल रही थी वो उस आदमी की थी जो तुम्हारी माँ के जनाजे की चारपाई तले जान से गया था। हो सकता है कोई और वजह हो, मगर अंदर ही अंदर लोग तुम्हारी माँ को भी कसूरवार समझते हैं। मैं उसकी ये अजीबो गरीब बातें सुनकर शशोपन में पड़ गया। कितनी बेमंतक बातें कर रहा था वो। खैर, मैंने फिर पूछा, तो ये बात गांव में क्यों नहीं की जाती? इसकी भी कोई वजह होगी। हाँ, है ना वजह। सब गांव वाले यही समझते हैं कि हमारे गांव पर जन्नात का साया है, तो कोई भी ये बात गांव के अंदर नहीं करता। जिन जिन लोगों की मौत हुई है वो अपनी मौत से पहले ही उसी दिन उसी वाक़े के मुतालिक बात कर चुके होते थे, या फिर गांव छोड़ने की बात कर रहे होते। तभी अब कोई भी एक गांव छोड़ने की बात नहीं करता, या फिर इस बात के मुतालिक गांव के अंदर बात नहीं करता। यही वजह होगी कि फिर इशा के वक्त मस्जिद भी बंद थी। मैंने अंदाज़ा लगाया तो मुजफ्फर ने इस बात में सर हिलाकर मेरी बात की तसल्ली कर दी। मैं गांव में आकर अजीब कश्मकश में पड़ गया था। मैं वहां से वापस आ चुका था। मैंने मुजफ्फर को पूछा कि यार, तुम खुद बताओ ये क्या मामला है, तुम्हें क्या लगता है? वो मेरे करीब हुआ और बोला, मुझे लगता है गांव पर जन्नात का साया है जो सबको परेशान कर रहे हैं। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे गांव को ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आधी रात में पायल की चिंगार, कभी कभार कहके लगाने और ऊंची ऊंची आवाज में रोने की आवाजें सुनी हैं। मैंने पूछा, क्या सच में तुमने कभी जन्नात देखे हैं? वो नफी में सर हिलाकर बोला, नहीं देखे तो नहीं, मगर बहुत से लोगों को इस चीज का तजर्बा हुआ है। मैं चुप कर गया। फिर पूछा, क्या लोगों ने किसी पीर से रुजू किया? मतलब गांव पर जो भी मुश्किल आई है उसके मुतालिक कोई हल निकालने की कोशिश नहीं की? उसने कहा, हाँ बहुत कोशिश की, मगर
कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। जो भी आता है एक ही बात करता है कि हम या तो जिन्नात को कहीं अपनी मर्जी से भेज सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। इस गांव में जिन्नात को कोई दूसरा शख्स अपनी मर्जी से लाया, अब हम इन्हें नहीं निकाल सकते। अगर वो जिन्नात या जो भी साया है वो खुद ये जगह छोड़कर जाना चाहे तो तभी जा सकता है, वरना नहीं। मैंने हैरत से कहा, जब इतना सब कुछ मालूम हो गया है तो फिर मेरी माँ पर यह सारा इल्ज़ाम क्यों डाला जा रहा है? उन्होंने तो नहीं किया ना ये सब। वो उलझ गया और बोला, हाँ खाला क्यों करेगी? खैर, हम लोगों के जहन को तो नहीं बदल सकते। उनके नज़रियात साला साल वही रहते हैं जो वो बना लेते हैं। मैं चुप कर गया। मेरा अभी वहाँ बैठने का इरादा था, मगर मगरिब होने वाली थी और वो मुझे घर जाने का बोलने लगा। मैंने उसे कहा कि कुछ नहीं होता, 2 मरतबा आधी आधी रात तक मैं घर से बाहर रहा हूँ। देख लो हट्टा कट्टा हूँ, मुझे तो अब तक कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। मगर वो बहुत डरा हुआ था ये सुनकर कि मैं 2 मरतबा आधी रात तक गाँव में फिरता रहा। वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ वापस ले गया। मैं भी उसकी जहनी कैफियत को समझ सकता था, सो चुपचाप चल दिया। घर जाकर उसने मुझे खाना पकड़ाया और मैं अंदर अपने घर आ गया। अचानक मेरी नज़र बेरी पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे ये बहुत ज़्यादा पुरस्रार हो। अम्मा ने इस बेरी का हद से ज़्यादा ख्याल रखा। अम्मा की बातें, उसके जिस्म पर पड़े नील के निशानात, गांव में जिन्नात की मौजूदगी, इस सारे वाक़े को अम्मा से जोड़ना, ये सब कुछ बहुत ड्रामाई सा था। मैं चाहने के बावजूद यकीन नहीं कर पा रहा था। मैं अपने ध्यान में खड़ा था। जब मेरा हाथ बेरी को लगा तो एक थरथरी सी पूरे जिस्म में फैल गई। मैं करंट खाकर पीछे हुआ क्योंकि मेरी कैफियत बहुत अजीब सी हो गई थी। दोबारा बेरी को हाथ लगाया तो अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अचानक से मुझे उस घर में खौफ आने लगा। मैं घबरा गया तो तेजी से बाहर निकल आया। मगरिब हो रही थी और सब लोग अपने अपने घरों की तरफ तेजी से जा रहे थे। मुझे भी एक दो ने घर लौटने को कहा तो मैं सिर्फ इस बात में सर हिलाकर रह गया। अलबत्ता मैं बस चलता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरफ जाऊं। उस वक्त जो मेरी कैफियत थी वो तो यही थी कि अगर इस गांव में वाकई जिन्नात का बसेरा है तो वो हर दम किसी न किसी इंसान की जान लेने के दर पे रहते हैं, तो उन्हें इस वक्त मेरी जान ले लेनी चाहिए। मैं तो शहर से बहुत मजबूर होकर इस तरफ आया था। पहले स्टेज शो में बहुत मुश्किल से मौका मिला। मैं शहर गया तो फुटपाथ पर सो जाता था, खाने के लिए लंगर खाने में चला जाता। आहिस्ता आहिस्ता मेरा वहाँ आना जाना देखकर एक शख्स ने मुझे स्टेज पर छोटे मोटे रोल देना शुरू कर दिए। मैं बहुत बड़ी उम्मीदें लेकर आया था कि हीरो बनूंगा, ये होगा वो होगा, मगर वहाँ जाकर मिला तो क्या मिला? कुछ भी नहीं। वो कुछ नहीं मिला, इसीलिए मैं चुपचाप वही काम करने लगा जो मुझे मिल जाता था। धीरे धीरे मैंने भी वो सब कबूल करना शुरू कर दिया। मगर जब मेरे कदम जमाने का वक्त आया तो उन्हें कोई नया लड़का मिल गया। मुझे लाख निकालने की कोशिश की मगर मैं नहीं गया, तो एक रोज धक्के मारकर स्टूडियो से मुझे बाहर निकाल दिया। उस वक्त अम्मा और बाजी की याद आई तो मैं गांव चला आया, मगर यहाँ आया तो पता चला कि जिनके पास आया हूँ वो भी नहीं रहे। मैं उस वक्त बहुत बुरी जहनी कैफियत में था। सड़क किनारे चलने लगा। चलते चलते अचानक से पठान लड़के के बंद ढाबे पर मेरी नजर पड़ी। मैं वहीं एक तरफ खड़ा हो गया। मुझे चाय की शदीद तलब हो रही थी। वहीं बैठे बैठे काफी देर गुजर गई जब वो मुझे दूर से चादर की बिकल मारे अपनी तरफ चलता हुआ दिखाई दिया। मुझे वहाँ पहले से देखकर वो बहुत खुश हुआ था और मुसाफा करते हुए हाल अहवाल पूछने लगा। अभी उसने मेरा हाथ छोड़ा ही था कि वो दर्द से कराहने लगा, जैसे उसके हाथ को कुछ हो गया हो। मैं परेशान हो गया। मैंने देखा उसके हाथ में बहुत बुरी तरह से मोच आ गई थी। खैर, मुझे मोच निकालने का अंदाज़ा था तो गुजारा हो गया। उसके बाद वो मेरे लिए चाय बनाने लगे। हम बैठकर बातें करने लगे। जब काफ़ी देर हो गई तो मैंने देखा उस लड़के को अचानक से चक्कर आने लगे। वो तकरीबन गोल गोल घूम रहा था। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। पहले मैंने उसे पानी पिलाया तो वो थोड़ा संभल गया। खैर, कुछ देर मजीद गुजरी तो वो बाहर देखता हुआ बोला, बाबूजी एक बात बताऊं? मेरे कान खड़े हो गए। उसका अंदाज ही ऐसा था। मैंने कहा, बताओ। वो धीरे से बोला, मुझे अजीब व गरीब चीजें दिखाई देती। ये सुनकर मेरे चेहरे की रंगत एकदम से मुतगय्यर हो गई। मैंने धीरे से पूछा, कैसी चीजें? वो मेरे मजीद करीब हुआ और बोला, इस गांव के बारे में बड़ी अजीब व गरीब बातें मशहूर हैं। मैंने पूछा, कौन सी बात है? वो लम्हे भर के लिए चुप हुआ, फिर बोला कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है, मगर वो खुद नहीं आए बल्कि उन्हें जबरदस्ती इस गांव में दाखिल किया गया है। मैंने गहरा सांस लिया, मगर वो चुप रहा। वो मजीद बोला, मैं तभी इस गांव में नहीं जाता, ये ढाबा भी इधर गांव से बाहर बनाया है। आज तक मुझे कभी कुछ दिखाई नहीं दिया और ना ही कोई उल्टा सीधा वाकया मेरे साथ हुआ। मगर 1-2 दिन हो गए हैं वो जिस रोज मैंने कहा था ना
कि यहाँ पर कोई बच्ची दिखाई दी है। बस तब से ही बहुत अजीब और गरीब हो रहा है मेरे साथ। मुझसे रहा ना गया तो मैंने पूछ लिया, क्या दिखाई दिया है तुम्हें और क्या अजीब और गरीब हो रहा है तुम्हारे साथ? वो फौरन बोला, दुकान में से मेरी चीजें गायब हो जाती हैं। जब मैं ढूंढता हूँ तो नहीं मिलती, थोड़ी देर बाद खुद ही मिल जाती हैं। मैंने कहा, यह कोई अजीब वाकया नहीं है, मुमकिन है तुम्हारा ध्यान किसी और चीज पर हो, कोई चीज रख कर जगह भूल गए हो और तुम्हें याद ना रहो। वो कुछ बोलता बोलता चुप हो गया। मैंने पूछा, क्या कहना चाहते हो? मगर वो ये बात बदल गया और फिर चुप कर गया। अभी हम यही बात कर रहे थे जब बाहर से हमें पायल की छन छन सुनाई दी। वो पठान लड़का और मैं दोनों अपनी जगह पर दुबक गए। पायल की छनकार कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। हम में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि हम बाहर निकलकर उस आवाज की सिमत देख सकें। वो पठान लड़का डरते हुए बोला, मुझे लगता है वो जिन्नात या जिनजादियां इस गांव से बाहर आ गए हैं। अब हमारा बचना भी मुश्किल लगता है। मुझे तो बिल्कुल दुख नहीं हो रहा था। मैं तो चाहता ही यही था कि जितनी जल्दी हो सके मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, क्योंकि अब इसका कोई मकसद नहीं बचा था। हम दोनों अपने ही ध्यान में बैठे हुए थे जब मेरे सामने पड़े चाय के कप हिलने लगे। हम दोनों अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उस पठान लड़के की तो जान पर बन गई। वाकयात सुनना और उन वाकयात को अपनी आंखों के सामने रोनमा होते देखना बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीजें हैं, जिसका मुशाहिदा हम दोनों कर रहे थे। बाहर पायल की छनाछन जो मुसलसल करीब सुनाई दे रहे थे, उस पर ढाबे में हिलता वो चाय का कप दिल पर बिजलियों की मानद बरस रहे थे। अचानक से एक गर्म लू सी महसूस हुई। हमने चौंक कर ढाबे के बाहर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। पायल की छनकार भी रुक चुकी थी, मगर महसूस किया जा सकता था कि उस ढाबे के बाहर एन हमारे सामने कोई ताकत खड़ी है। अचानक से वो चाय का कप छलका और ढाबे के अंदर से गर्म हवा का झोंका आया, जैसे कोई बच्चा भागता है। सिर्फ इतना ही नहीं, भागते भागते दो चार चीजें भी गिरा देता है। इस तरह कुछ बर्तन हमारी तरफ से जमीन पर गिरे थे। हम दोनों ही दम साधे खड़े थे। अचानक ही गर्म हवा का झोंका खत्म हो गया और पायल की छनकार एक मर्तबा फिर से शुरू हो गई। यानी कि वो जो कोई भी था वो ढाबे से दूर जा चुका था। ये सोचते ही हमने दोनों ने गहरा सांस लिया। पठान लड़का जल्दी से बोला, बाबूजी, मैं बता रहा हूँ, यहाँ खैरियत नहीं है। जिन्नात ने बाहर का रुख कर लिया है। देखो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी माँ को शहर उनके भाई के पास छोड़ देना। बस मेरा एक ये काम कर देना, क्योंकि मेरी माँ का ख्याल रखने वाला इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। उनका भाई ख्याल तो रखेगा नहीं, मगर मेरी माँ के पास कोई अपना तो होगा। मैं चुप करके पठान लड़के की बातें सुनता रहा। ये वाकया सिर्फ उसी दिन का नहीं था। रोज शाम को मैं पठान के ढाबे पर चला जाता। अब वहाँ पर उसी तरह के अजीबो गरीब हरकत और सकनात होने लगे। वहाँ होती शरारतें देखकर मुझे ये बात वाज़ेह हो गई थी कि शरारत करने वाला कोई बच्चा है। दूर से आती पायल की झंकार मध्यम होती और फिर धीरे से उसकी आवाज़ तेज होने के बाद पठान के ढाबे के सामने दम तोड़ देती। पहले की तरह हवा का गर्म झोंका महसूस होता और वही पायल की छन छन दूर होती जाती। इस बात को तकरीबन एक हफ्ता हो चुका था। हम दोनों ही इन हरकत और सकनात के आदी हो चुके थे, मगर हैरत इस बात की थी कि ये हमें कुछ कहते नहीं थे। बाकी लोगों की जान के दर पे क्यों है, मगर इस बात का जवाब हमारे पास मौजूद नहीं था। फिर एक दिन कुछ अजीब सा हुआ। हम ढाबे में बैठे थे जब अचानक रोने की आवाज़ सुनाई दी। पठान लड़का तो अंदर ही बैठा रहा, जबकि मैं ढाबे से बाहर निकल आया। मुझे कुछ दिखाई ना दिया। मैंने अचानक ही गर्दन घुमाकर ढाबे की छत पर देखा तो मेरी जान निकल गई। छत पर औंधे मुँह एक छोटी सी बच्ची मुंह नीचे किए मेरी तरफ मुसलसल देखकर रोए जा रही थी। मैं डर गया। दिखने में साफ जाहिर था कि वो आम बच्ची नहीं थी, बल्कि उसका ताल्लुक इंसानों से नहीं लग रहा था। पठान लड़का भी मेरे पीछे ढाबे से बाहर निकल आया। उसने वो बच्ची देखी तो चीखने लगा। मैंने बामुश्किल अपने हाथों में थामकर उसे पुरसुकून हो जाने के लिए कहा। 2-3 लम्हे के बाद जाकर वो पुरसुकून तो नहीं हुआ, अलबत्ता रुक गया था। मैंने धीरे से पूछा, कौन हो तुम लड़की? वो एकदम छलांग लगाकर एन हमारे सामने मुकाबिल जमीन पर खड़ी हो गई। हम दोनों डर कर पीछे हुए, मगर वो मुसलसल रोए चली जा रही थी। अब की मर्तबा मुझे भी शदीद डर लगने लगा। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? वो मेरी तरफ देखकर रूहान सी आवाज में बोली, मेरी माँ आज फिर किसी को मार देगी। कौन है तुम्हारी माँ और क्यों किसी को मारेगी? वो लड़की सुर्ख होती आंखों से मुझे देखकर बोली, बस मार देगी, वो ठीक नहीं है। उसे जब गुस्सा आता है वो किसी को मार देती है। मेरे अब्बा को भी उसी बुढ़िया ने मार दिया था। वैसे ही मेरी माँ सबको मार देगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। हम दोनों अक्का बक्का खड़े उसकी बात सुन रहे थे। पठान लड़के की तो बोलती बंद हो चुकी थी। बोला, मुझसे नहीं रहा जा रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पूछूं और किस बात पर खामोश रहूं। हम दोनों चुप रहे तो वो मेरी तरफ देखकर गुस्से से बोली,
تم لائے ہو ہمیں یہاں پر. پہلے ہم اس گاؤں میں تھے مگر تم نے ماں کو اس گاؤں کی قید سے باہر نکال دیا. اب وہ کسی کو نہیں چھوڑے گی. میں اس سے پہلے کچھ بولتا. وہ پٹھان لڑکا ہکلاتے ہوئے کہنے لگا, کیا کہہ رہی ہو؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اس بچی نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا, اس کی ماں نے میرے ابا کو مار دیا, اب میری ماں سب کو مار دے گی. اتنا بول کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی. ہمارے جسم میں بجلی کے کوندے لپکنے لگے. میں آگے بڑھا اور بولا, جو بات ہے کھل کر بتاؤ. کیوں تم اور تمہاری ماں میرے گاؤں والوں کے پیچھے پڑے ہو؟ جان کیوں نہیں بخش دیتی گاؤں والوں کی؟ وہ غصے سے میری طرف دیکھ کر بولی, ہم مرضی سے یہاں پر نہیں آئے, تمہاری ماں لے کر آئی تھی. اس نے وہ تعویذ اس بیری کے نیچے چھپائے ہیں جو تمہارے گھر میں موجود ہے. اپنے عمل سے اس نے میرے ابا کو یہاں پر قید کر رکھا تھا. اپنا ہر کام کرواتی تھی. جانتے ہو کون تھے میرے ابا؟ شہنشاہ جنات. مگر اپنے عمل کے الٹا پڑنے کی وجہ سے اس نے میرے ابا کی جان لے لی. جب ہمیں اس بات کا پتہ چلا تو میں اور میری ماں دونوں یہاں پر آئے, مگر تب تک ابا جا چکے تھے. اس روز میری ماں نے سوچ لیا تھا کہ وہ پورے گاؤں کو تباہ کر دے گی. تمہاری ماں کو موت کے گھاٹ اتارنے والی بھی میری ماں ہی تھی. روز وہاں پر میری ماں لوگوں کو مار کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرتی ہے. مجھے بھی مزہ آتا تھا. مگر پھر تم اس بیری کے نیچے کھڑے ہوتے اور اس کی مٹی کو گاؤں سے باہر لانے لگے. تمہارے جوتے میں لگی مٹی جہاں جاتی وہاں ہمارا جانا لازم ہو جاتا, کیونکہ اس تعویذوں کی طاقت ہی ایسی ہے کہ ہم بے بس ہو جاتے ہیں. اس روز اس لڑکے نے تمہیں وہ بات بتائی. اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں. اسی روز میری ماں اسے مار دینا چاہتی تھی, مگر مجھے اچھا لگتا تھا. میں نے ماں سے کہہ دیا کہ اسے کچھ نہ کہنا, مگر میں یہ جانتی ہوں کہ ماں کبھی نہ کبھی اس کو مار دے گی. ہم بس آزاد ہونا چاہتے ہیں. میں اس زندگی سے تھک چکی ہوں. بس کسی طرح وہ بیری تلے دبے ہوئے تعویذ نکال دیے جائیں تو ہمیں یہاں سے جانا ہوگا. ہم آزاد ہو جائیں گے. یہ بات سن کر ہم دونوں کی حالت بہت عجیب تھی. گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. میں اسی وقت گھر کی طرف بھاگا اور رات کے اس پیر بیری کی وہ زمین جہاں اس رات میں نے اماں کو بیٹھے دیکھا تھا کھودنے لگا. تھوڑا سا ہی کھودنے پر مجھے ایک شاپر میں بندے تعویذ مل گئے جنہیں میں نے اسی وقت جلا دیا. میں واپس اس پٹھان لڑکے کی دکان پر آیا تو وہ وہاں نہیں تھا. نہ وہ پٹھان لڑکا تھا اور نہ ہی اس کا ڈھابا. مجھے لگا شاید میں راستہ بھول گیا ہوں. بہت ڈھونڈا مگر وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. اگلے روز گاؤں کے لوگوں سے اس ڈھابے کا پوچھا تو وہ بولے, میں کس ڈھابے کی بات کر رہا ہوں؟ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ وہ پٹھان لڑکا بھی اسی زنزادی کا ساتھی تھا جس نے مجھ سے جان پہچان صرف اسی لیے بڑھائی کہ کسی طرح وہ مجھے تعویذ نکالنے اور جلانے پر مطمئن کر سکے. مگر یہ کام وہ چھوٹی سی لڑکی بڑے ہی احسن طریقے سے سر انجام دے گئی. خیر جو بھی ہوا تھا اچھا ہی ہوا. اس دن کے بعد سے گاؤں میں نے ایسا کوئی واقعہ دوبارہ نہیں سنا جس میں کسی کی موت ہوئی ہو یا کسی عجیب و غریب شے سے انسانوں کا پالا پڑا ہو. البتہ اس بات کا کلک مجھے ساری زندگی رہے گا کہ وہ عورت جس کو میں نے اس قدر عظیم ہستی سمجھ کر ماں کے درجے پر فائز رکھا, وہ اس طرح کی ناقابل معافی حرکت بھی کر سکتی ہے. پتہ نہیں اماں کی جان پر اب تک نہ جانے کتنی ہی اموات کا بوجھ بڑھ چکا تھا.